Hello my dear students, I welcome you all to my YouTube channel Ahmad Study Circle। आज के इस वीडियो में हम लोग द विजिटर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं जो कि गुलमोहर क्लास 8 से लिया गया है। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप सबके साथ डिस्कस करूं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे गुलमोहर क्लास 8 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उसमें इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, तो आप उन दोनों वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को समझाने वाला नहीं हूँ। मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उनका आंसर पढ़ूंगा ताकि ये जल्दी जल्दी निपट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले पोर्शन को कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है सेक्शन ए में रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में कुछ लाइंस दिए गए हैं और उन्हीं लाइंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका हमें आंसर देना होता है। तो ये लाइन है आपको रेड कलर में, थिंक लिजेल सी हैड इट, दैट्स इट सी डिसाइडेड बट आई हैव टू मेक इट रियल। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट वाज लिजेल प्लानिंग, व्हाट वाज लिजेल प्लानिंग, व्हाई लिजेल आखिर प्लान क्या कर रही थी और वो क्यों कर रही थी। तो ये आंसर हमारा ये रहा, Lizel was trying to come up with a plan to excuse herself from the children's game under some pretext and run back to her home and inform her parents about the NSDP members coming down their street, checking the basements in every house to check their viability for being turned into air raid shelters. She had to hatch a plan urgently because her parents were sheltering a Jewish man, Max, in the basement, and without Lizel's information, her parents would totally be blindsided when the NSDP came to their door and demanded to check the basement. The NSDP, working under Hitler's orders, wouldn't have taken kindly either to a Jew in hiding or to the people who gave him shelter. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था उसी के ऊपर बेस्ड ये दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड सी हैव टू मेक इट रियल। आंसर हो जाएगा, सी हैड टू मेक इट रियल बिकॉज इफ द एनएसडीपी मेंबर्स ग्रू द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ सस्पिशियस फ्रॉम हर एक्शंस they would turn their house inside out and finally discover the Jew. Lizel realized that her best sort was maintaining all semblances, क्या पढ़ेंगे इसको, semblances पढ़ेंगे, all semblances of normalcy and somehow getting the information to her father. Second question है, Papa was strict. Basically ये statement है, Papa was strict, nothing, we don't even go down there, not a care in the world. अब इस statement पे based question है, what was Papa's plan to prevent the Nazi from finding Max? आंसर हो जाएगा, at first mama, यहाँ पे mama mother को बोला गया है, लिजेल की mom को। At first mama had considered moving Max from the basement to Lizel's room, but then there was no time for that because the NSDP were already at their door. Papa told them the only plan, given the situation, should be to do nothing and receive the party members as naturally and cordially as they could. Next question, why do you think he wanted to pretend as though he did not have a care in the world? Answer हो जाएगा, Papa wanted them to pretend like they did not have a care in the world so that the NSDP members who had come to inspect the basement in their house would not suspect that the Habermans had anything to hide. Question number 3 statement दिया गया है, Lizel could not ward off the thought of Max so on hugging to his chest. अब इस statement पे base question क्या है, do you think Lizel and the Habermans were fond of Max, or were they only worried about being punished for helping a Jew? Answer क्या हो जाएगा, Lizel and her parents were fond of Max. Her parents had decided to shelter a Jewish man on principle and had also grown to be fond of him. Of course, they also lived with the fear of discovery of their deed as well. But the fact that the child
in the family could empathize with Max's fear and helplessness hiding in plain sight in a room with NSDP members shows the extent of their concern for Max. Next question है, can you find more examples from the text to support your answer? So answer क्या हो जाएगा? We see the Haberman concern for Max from the very outset. This was ever since Lizelle's throat dried up when she saw the NSDP members coming down the road checking basements in every house. Papa's immediate action and his act of maintaining a ruse with very high stakes is again proof of their fondness for Max, who had almost become a family member. सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चंस है, उनका आंसर करना है। और इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्स क्लेम्स दैट ही वुड नॉट हैव यूज्ड द पेयर ऑफ सीजर्स ही वाज फाउंड होल्डिंग। डज पैरा 69 टेल अस दैट फॉर श्योर और इज देयर सम अनसर्टेनिटी? आंसर हो जाएगा, Max was holding a pair of rusty scissors according to para 69, which could be turned into a stabbing weapon with the proper motivation and force. Max tells the family that he had never really meant to use them as a weapon, but given the nervous state he was in, no one can be sure as to what he would have done had he been discovered by the Nazi. In your opinion, next question, in your opinion, would Max have been justified in using the scissors on the Nazi? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उस जू मैन ने, मैक्स वैंडरबैग ने अगर उस नाजी इंसान पे कैंची से और सीजर से हमला कर देता तो क्या इसको आप जस्टिफाई कर पाते, ये कह पाते कि उसने सही किया? आंसर होगा, perhaps one could not blame Max even if he did use the scissors on the Nazi, because in this context Max would be desperate to do anything to survive for as long as is possible and escape the Nazi agenda of mass-scale ethnic cleansing. Next question है, how does Lizelle prove herself to be a clever and resourceful girl with courage and self-control? Use these situations as examples to support your answer. अब इस स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन ये है कि लिजेल्स प्लान टू वार्न हर पेरेंट्स अबाउट द इंस्पेक्शन, इसको हम लोग आंसर करेंगे, लिजेल प्रूव्स हरसेल्फ टू बी अ क्लेवर एंड रिसोर्सफुल गर्ल विद करेज एंड सेल्फ कंट्रोल. शी हैचेस अ प्लान क्विकली so that she could slip away from the game with a legitimate reason for going back home. That's why she could warn her father of the imminent Nazi inspection. She tries to keep calm and convey the full information to her father. Next है, Lizelle's behavior during the Nazi inspection. आंसर कैसे करेंगे? Lizelle partakes in her father's charade of normalcy when the Nazis were inside their house inspecting the basement. Though her mind was assailed by images of Max crouching in terror hiding from the Nazis, she was still able to function normally and keep her calm. तो ये रहा जो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर थे वो। अब टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर और उसकी यूजेस दिए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में है रीराइट दीज सेंटेंसेज इन द वे इंडिकेटेड, तो जिस तरह से इंडिकेट किया गया है उसी तरह हमें सेंटेंसेस को लिखने हैं। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था, कविता फेल्ट एज दो शी कुड नॉट बियर टू वेट अनदर मिनट फॉर द जजेस वर्डिक्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाला सेंटेंस जो कि पिंक कलर में है ये पास्ट सेंटेंस में है और हमें हिंट में दिया गया ब्रैकेट में है, हमें लिखना है कविता फील्स। इसका मतलब कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो उसको प्रेजेंट में करके लिखना है और अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो फिर उसे पास्ट में करके लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कविता फील्स, ये जो पैरेट कलर है उसको देखिएगा, कविता फील्स एज दो सी कुड नॉट को हम लोग कैन नॉट कर देंगे, सी कैन नॉट बियर टू वेट अनदर मिनट फॉर द जज वर्डिक्ट। ओके, वैसे ही दूसरे का हो जाएगा, मदर वांटेड राज एंड राहुल टू प्रिटेंड एज दो एवरीथिंग वाज परफेक्टली ओके। थर्ड का हो जाएगा, लता वंडर्ड इफ द गेस्ट्स कुड स्मेल द बर्न मिल्क। आई मीन यहाँ पे अगर सेकंड वाले को देखा जाए तो वांटेड है तो क्वेश्चन में वांट्स होगा, थर्ड वाले में
वंडर्ड है तो क्वेश्चन में वंडर्स होगा, ठीक है। नंबर 4 देखो, द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट द राइटर हैज़ टू बी रेडी टू प्रमोट हिज बुक अराउंड द वर्ल्ड, वैसे ही 5 का हो जाएगा। ये सभी आंसर है। देयर वुड बी नो फर्दर रिक्रूटमेंट फॉर अ फ्यू ईयर्स वी फेल्ट सो, और 6 का हो जाएगा वी कैन हाउ कैन एनी वन प्रिडिक्ट इफ इट विल हैपन अगेन। ओके, ग्रामर यूजेस का सेक्शन बी क्या कहता है, rewrite these sentences by changing the highlighted verbs into the simple present tense or the simple past tense। यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, उनमें कुछ verbs है जिन्हें highlight कर दिया गया है, और उन highlighted verbs को अगर वो simple present tense में है तो उन्हें simple past में करना है, और अगर वो simple past में है तो फिर उन्हें simple present में करना है। make sure the clauses agree in tense forms। और हमें ये भी देखना है कि इनके साथ जो दूसरे क्लॉजेज जुड़े हुए हैं वो भी उन टेंस फॉर्म्स के साथ क्या करते हैं, अग्री करते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि एक प्रेजेंट में हो जाए दूसरा पास्ट में हो जाए, तो एक करके बताया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल दो द चिल्ड्रन आर टेरिफाइड, ऑल दो हालांकि बच्चे जो हैं वो टेरिफाइड हैं, डरे हुए हैं, तो यहाँ पे आर लगाया गया है, ये प्रेजेंट की बात है, और जो हाईलाइट किया गया है उसको हमें चेंज करना है। They hide their fear and act casual in front of the thieves। तो hide और act अपने आप में simple present tense में है, तो बेसिकली इसे हमें simple past tense में चेंज कर देना है। तो कैसे करेंगे, although the children were terrified, अब क्योंकि हम hide को और act को past tense में ले जाएंगे, इसीलिए जो इसके साथ clause लगा हुआ है although the children are, उसे भी हमें were में चेंज करना होगा, past tense में चेंज करना होगा। although the children were terrified, they hid their fear and acted casual in front of the thieves। hide को हमने hid कर दिया और act को हमने acted कर दिया, simple present से simple past में। वैसे ही second का हो जाएगा my grandparents collect the kitten and make their way to the garden। third का हो जाएगा the footballers use shin guards and ankle supports so that they can protect themselves from bruises and sprains। 4 का हो जाएगा as soon as Kamal decides to go to Puri, he goes to the station to buy his ticket। और 5 का हो जाएगा we ate lunch at a local canteen and didn't mind the crowd as the food was excellent। अगर हम चाहें तो इसको, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन 5 है, तो इसका यहाँ पे 5 को जो सोल्व करके दिखाया गया है, इसका क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट बता भी सकता हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, वी ईट लंच एट अ लोकल कैंटीन एंड डोंट माइंड द क्राउड एज द फूड इज एक्सीलेंट, क्योंकि इसको हमने वाज में कर दिया था। वैसे ही 4 का क्या होगा, एज सुन एज कमाल डिसाइडेड टू गो टू पूरी ही वेंट टू द स्टेशन टू बाय हिज टिकट हो जाएगा। वैसे ही 3 का और वैसे ही सेकेंड का। तो ये जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, ये डायरेक्ट मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर द विजिटर चैप्टर का। इस वीडियो का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं लोग एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ या किसी दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।